our lead story. Well, Australia has won the World Cup final for the 6th time, and here in India we were all rooting for the men in blue. A million heartbreaks, as we said, but Australia has won the final, and well, Virat Kohli has emerged as the player of the tournament with over 700 runs and 3 centuries. But it was a rather interesting match, but at the end India lost it to the Aussies, and of course analysis and multiple memes also now surfacing on the internet, but the Prime Minister says that we stand by you today and always. It was a one-sided affair in the end, despite India's dominant show in the World Cup, having won 10 matches, but the 11th wasn't to be their day. On Sunday, it was Team Australia, Pat Cummins' team, clinching their 6th title, and well, it has come after some time, so Australians will cherish this. In the studio, we have former cricketers Sabah Karim, Vijay Dahiya, Gursharan Singh. We also have Mohammad Shami's coach, and we are going to talk to them about where India dropped the World Cup. Sabah, your first reaction? Yes, Osama, please go on. Okay, I also want to add that despite the fact that this is a heartbreak for all of us. It isn't really a heartbreak. Yeah, all of us fans, but yeah. at the same time we should be really proud of India's entire campaign, and this is what I want to discuss with our experts here. India should take a lot of positives from this Osama, एक मिनट, बच्चे भी हैं हमारे साथ, इनको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं जी जी लास्ट टाइम में। तो सलाम बालक ट्रस्ट के बच्चे भी हमारे साथ सुबह से बने हुए, इधर भी हैं उधर भी हैं, और हमारे साथ वैशाली भी हैं, उनके साथ भी जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं। आप सबको का शुक्रिया है कि आप सुबह से बैठे हैं। और सलाम बालक ट्रस्ट की मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके साथ, अभी टी शर्ट का रंग नीला कर दीजिए। ये येलो रंग है ना, आप लोग पहन के आओ, येलो टी शर्ट के लोग जीत गए। एक्चुअली अगर ये लोग बैग दिखाएंगे, जरा बैग खड़े हो जाओ, जरा बैग दिखाओ सारे। ये इंडिया लॉयंस टीम है जो कि स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे चेन्नई, तो ये हमारा इंडिया का एक्चुअल ड्रेस था। हाँ, चेन्नई येलो है, सीएसके जी। ओसामा, कैरी ऑन। Yes, Sabah bhai, your reactions on this match, plus the fact that, like I said, India should take a lot of heart from this entire campaign. That's correct, Osama. I think this team should be extremely proud of the way they have performed. They have raised expectations of all the cricket fans, and that is why one expected them to win. And I also feel this was such a golden opportunity for India to come good in the finals, because the way I look at it, the way India has performed, it seemed to be the best possible 11 to win the World Cup for us after 12 years. Unfortunately for India, this is such a disappointing loss. Nothing felt right for India in the finals, although in the previous, all the 10 encounters, India were able to win all the big moments, all the critical moments. Unfortunately, India just faltered at the wrong time. But yes, I think I was looking for a World Cup win, not only because India deserved it, but I think this is the kind of domination I expect from the Indian side, not only in one-day cricket, but in all 3 formats, because India has got the right kind of players. We do have the acumen, we do have the perfect exposure, and our bench strength is so strong. So this was like an ideal time for India to win the one-day World Cup. दहिया साहब 10 मैच शानदार क्रिकेट खेलते हैं, एक मैच आज फाइनल हार गए, अभी भी इस टीम के साथ पॉजिटिव है, बने रहना चाहिए इंडियन फैंस को और इंडियंस को। जी बिल्कुल बने रहना चाहिए। दुख इस बात का है कि आप जिस मैच को हारे हैं उस मैच के ऊपर सब कुछ था, सब दाव पे उसी पे था। अगर आप जिस तरीके से हमने इस मैच के बारे में भी हेडलाइंस पढ़ी है ना, हम ये कह रहे हैं कि भारत 6 विकेटों से हारा। जब आप ये कहते हैं 6 विकेटों से हारा, तो सिर्फ आप ये कमी देखने लगते हैं कि भारत ने क्या किया। आप इसी चीज़ को बोलने लगेंगे कि ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया ने क्या अच्छा किया उसकी तरफ आपकी नज़र जाएगी, और जो जीता है उसकी तारीफ बनती है, क्योंकि आप इस खेल के बारे में, ये खेल सिखाता है आपको ये है कि ऑन अ गिवन डे जिसने जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ बनती है। और मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट में आउट क्लास किया है। कई बार हम ये भी कह देते हैं कि चलो सिर्फ एक टॉस ही जीते, उसके बिना कुछ नहीं जीते, आज तो वो भी नहीं हुआ। तो वो उस तरीके का दिन था, और ऑस्ट्रेलिया ने हर चीज़ में, और क्या होता है कि जब इस तरीके का रिजल्ट आपको मिलता है ना, तो फिर आप सारी चीज़ें जोड़ देते हैं। आप प्लानिंग भी कहते हैं बहुत बढ़िया थी। अगर हम तैयारी के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपने पिछले 8 वनडे में से 5 हारा है। साउथ अफ्रीका के अंदर 5 मैच की सीरीज खेला था, जिसमें 2 पहले मैच जीता, उसके बाद लगातार 3 हारा। भारत में आया, वहां 3 में से लगातार 2 हारा।
तो ये नहीं कह सकते कि आप उनकी तैयारी इस तरीके की थी कि ये आपको उससे अंदेशा हो रहा था कि ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं। यहाँ पर भी वो जिस तरीके से खेले, लेकिन हर आदमी जो क्रिकेट की थोड़ी बहुत नब्ज रखता है वो ये कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जैसे जैसे धीरे पहुंचती जाएगी, जैसे जैसे नॉकआउट्स की तरफ पहुंचती जाएगी, उनकी दावेदारी उतनी ज़्यादा पुख्ता होती जाएगी। और वही उन्होंने किया और वही दिखाया है उन्होंने कि सिर्फ स्किल नहीं, आप मेंटली कितने मजबूत होते हैं। क्योंकि थोड़े समय के बाद इस खेल के अंदर वो जिद होनी चाहिए जो ट्रेविस हेड ने दिखाई है, या शुरू के 10 ओवरों में जहां पर ऐसा भी हो सकता था कि चीज़ें आपके हक में नहीं जा रही थी और आप एक आध गेंद को एज भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। वो लड़ते रहे, वहां पर रहे और उनको ये पता था कि एक खिलाड़ी की कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है। और ट्रेविस हेड पहले कुछ मैचों में टीम के साथ थे नहीं, उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। जैसे ही वापस आए उन्होंने वहीं से रन बनाने शुरू करे और जो टर्न अराउंड अच्छी टीमों का होता है ना, वो होते हुए दिखा। हमें गेंदबाजी में शामी के साथ वो दिखा था, ऑस्ट्रेलिया के साथ बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड ने किया वो। Gursharan ji, I'll have to ask you about an evil phrase, and I call it evil because no one wants to hear it. Did law of average catch up with India? I think that happened today, the law of average. But I think we were just talking earlier also that India can only lose when they don't play to their potential. I think today in batting also, like batsmen getting set, and then like Rohit, Virat, KL Rahul, after being set, there was not any big inning like 100. If anyone of them could have got 100, around 300, it could have been a good match. But after the event, you can say another 40 runs. But still, I think 241. It was a par score on this wicket. It was. And the fast bowlers, what they did, they still did a brilliant job. They got 3 wickets in the first 6-7 overs, and after that, I think the spinners today were a bit off color, and for that, I think main thing is Trevor's head. He attacked the spinner right away. आपने बॉलर्स की बात की, मैं चाहूँगा बदरुद्दीन जी को माइक दिया जाए। अगर आज आप मैच के बीच में होते और शमी बॉलिंग कर रहा होता और आपको एक मौका मिलता कि शमी उसके कान में क्या फूकते जाके ताकि वो आज बॉलिंग ठीक कर पाते, आज कोई भी बॉलर रंग में नहीं दिखाई दिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कोई भी, जैसे शुरू में विकेट मिले भी हमें, लेकिन उसके बाद सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो स्पिनर थे जिन्हें ज़्यादा अच्छा करना चाहिए था, उसके बाद उन्होंने अच्छा नहीं किया। जैसे विकेट हम देख रहे थे या ऑस्ट्रेलिया के बॉलर, उस पर अच्छा टर्न हो रहा था बॉल वहाँ उस टाइम पे, लेकिन जहाँ पे विकेट गिरने के बावजूद भी स्पिनर ने अच्छा नहीं किया। और जो हम पहले से कह ही रहे थे कि सिराज जो है, सिराज अच्छा करेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, सिराज ने भी अच्छा बॉल नहीं डाला। और सामी भी, जैसे आप कह रहे हैं, सामी भी आज जैसा उसका बॉल सीम गिर रहा था, वो लेग साइड पे ज़्यादा मूव हो रहा था, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया शमी पे हम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सब, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज पहली बार है कि रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी से नई गेंद से गेंदबाजी कराई। मोहम्मद सिराज जनरली हमेशा वो ओपन कर रहे थे बुमराह के साथ, तो क्या उसका असर पड़ता है जो आज जो कंट्रोल मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में इसके पहले वाले मैचेस में हमें नजर आया है, वो इनिशियल ओवर्स में देखने को मिला नहीं। हालांकि उन्होंने विकेट लिया, पर वहाँ पर गलती डेविड वार्नर की थी, मोहम्मद शमी की कुछ उतनी अच्छी गेंद पड़ी नहीं आज जो नई गेंद से होनी चाहिए। मुझे लग रहा था क्या उसका असर पड़ता है? देखिए असर पड़ता ही है। जैसे कि देखिए आप पहले से तैयारी करते हैं कि मैं वन चेंज में बॉल डालने आ रहा हूँ लगातार, तो उसी के लिए तैयारी की, लेकिन एकदम से आपको पता चले कि भाई आपको नया बॉल डालना है, तो हो सकता है वो इतनी तैयार नहीं होता आदमी उसके लिए। और जहाँ पे जब वो बॉल डालने आ रहा था, जब तक 2-3 ओवर वो पुराना बॉल थोड़ा सा हो जाता है, और आपको पता है कि उसका पुराना बॉल भी अच्छा चलता है। Also, I mean, just want to add to that. I mean, Vijay talked about Australia. I think in big matches, in such World Cup encounters or World Cup finals, it's equally important to have a flexible strategy. Now, look what Australia did when they were chasing. Initially, they were ultra aggressive. The moment they lost 3 wickets, they kind of shut down the shutters for some time because Manus Labuschagne came into bat. Even Travis Head had a very flexible strategy. Before that, he was trying to be ultra aggressive, play too many high risk shots. But the moment he realized that Australia are 3 down for 40, it was more important for them to stitch a partnership. They played more sedate in a more sensible manner. And I think that is one of the reasons why Australia has done well. Playing a devil's advocate, if you would have been a captain, आपके पास आज मौका होता,
आपका एक बॉलर है जो पिछले मैच में 7 विकेट लेकर आया है, जो लगातार अच्छा खेल रहा है, और आपके पास 240 के टारगेट है, 400 रन नहीं है आज, तो आप उसको वेट कराते 9 ओवर तक, 10 ओवर तक, कि जब चेंज होगा तब मैं उसको बॉलिंग दूंगा शमी को, या फर्स्ट या सेकंड ओवर में कराते? नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ रोहित शर्मा की क्या स्ट्रैटेजी थी, पर मुझे अभी भी लगता है कि एक कारण से ही मोहम्मद शमी को हम लोगों ने फर्स्ट चेंज गेंदबाजी कराई। हो सकता है कि 6th ओवर में 7th ओवर में उन्होंने गेंदबाजी कराई है, और मोहम्मद सिराज आपके एक समय में सेकंड बॉलर हुआ करते हैं, अभी भी हैं। तो अगर वो बात थी, मैं बस यहाँ पर कुछ टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तब आप सोच सकते थे कि वहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की यही सोच होगी कि 7 विकेट जो लेने वाला बॉलर है वो इस कंडीशन में उसको हम पहले लगा दें। हो सकता है कि इनिशियल ओवर्स में अगर वो हमें विकेट लेकर दे देता है तो उससे भारत को फायदा मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली आज वो जो स्ट्रैटेजी थी रोहित शर्मा की वो कामयाब साबित नहीं हुई। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगले 24 घंटे इसी बात पे पूरे देश में चर्चा होनी है कि जब आप पूरे पैटर्न के साथ जा रहे थे तो आपने जो है सिराज को पहले बॉलिंग क्यों नहीं दी। आई थिंक वो अब क्या नहीं हुआ उसके बारे में बात होगी। आपके पास अगर टीम के अंदर एक ऐसा गेंदबाज है जिसने पिछले मैच में 7 विकेटें ली हैं, आपके पास बोर्ड में सिर्फ 240 रन लगे हैं, आपको ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया की ताकत ये है कि वो पहले 30 ओवर के बाद लेके आएंगे। अगर देखिए सोच ये थी कि किस तरीके से गेम में बने रह सकते हैं, और आप और मुझसे ज़्यादा बेहतर वो टीम मैनेजमेंट जानती है कि वो खिलाड़ी नेट में भी किस तरीके की बॉलिंग कर रहा है, मैच में भी किस तरीके का उसका प्रदर्शन चल रहा है। और 10 ओवर खत्म होने के बाद एक ही चांस था आपके पास कि आपके स्पिनर्स किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, और आप वो चांस बराबर लेते रहे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तारीफ ये करनी पड़ेगी, आप उतने ही बेहतर होते हैं जितनी आप अपनी पिछली गलती से सीखते हैं, और वो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो गलती की थी, 113 रनों पे ज़्यादा शॉटें खेलने की कोशिश करी थी, वो ज़्यादा बेहतर नजर आई। ये सवाल उठेंगे बाबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि 32 ओवर के बाद लाए हैं आप। जहां पर दिक्कत ये है ना कि सवालों से ऊपर उठना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि बेहतर क्रिकेट खोलते हुए नजर आए तो। I feel that Australia anticipated a lot of things in this match, and especially when it came to their bowling, and Rohit Sharma might have missed that trick when it came to his idea of selecting who to bowl when. I think if you look at the situation, you make in this game you make mistake because of the pressure, and this is what was happening. Indian team was looking desperate after just 240 on the board. The only option you have to get them all 10 wickets. तो इसका मतलब हो गया घुस पाजी कि आप बॉलर को ब्लेम क्यों कर रहे हैं, फिर तो आपने रन ही नहीं बनाए। सब वही कह रहे हैं, सब वही कह रहे हैं। बॉलर ना कि 30 ओवर के बाद क्यों लाए हो, और इसमें सिर्फ गलती बॉलर्स की नहीं है, इसमें बैटिंग में भी हमने कम रन बनाए, प्लस थोड़ा लैग भी हुआ। जैसे बात हो रही थी कि मुझे लगता है जो मोहम्मद शमी सेकंड ओवर डाले, पहले ओवर में बुमराह को आई थिंक 12 या 14 रन पड़ गए थे, 15 रन पड़ गए थे। तो इसलिए फिर रोहित को यही था कि हमारे फॉर्म में यही बॉलर शमी चल रहे हैं, तो उन्हीं को कराई उन्होंने। और उसके बाद मैंने एक और भी चीज़ देखी, स्पिनर्स के टाइम में जब स्पिनर्स बॉल डाल रहे थे 3 विकेट्स गिर चुके हैं, उसके बाद थोड़ा सा अटैकिंग फील्डिंग होनी चाहिए थी। स्लिप नहीं रखा आज, 2 कैचेस स्लिप में गए स्पिनर्स को, तो वहाँ पे भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा लैग हुआ।